तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 इंग्लिश बिहार में से चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice, born in the society where the birth of a son is regarded as a blessing and a daughter thou not considered as a curse, was not generally welcome. When her mother was expecting Santosh, a holy man traveling, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not wanted a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as the destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born on the sixth child in the family with five sons, a sister to five brothers. She was born in the small village of Juniavas of Riwari district in Haryana. तो इसमें एक ही वुमन जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया, मतलब 2 बार उस पे चढ़ी हो, उसके बर्थ ऑफ अ सन उसकी सोसाइटी में ऐसा लगता था ब्लेसिंग है, और डॉटर का ऐसा नहीं था कि कर्स है, लेकिन जनरली वेलकम नहीं थे। जब उसकी मम्मी संतोष को एक्सपेक्ट कर रही थी तो होली मैन ने उसको ब्लेसिंग दी कि तुम्हें वो एक सन मिलेगा। पर सब सरप्राइज हो गए जब उसकी उसकी अनबॉर्न बच्चे की ग्रैंड मदर जो कि उनके पास खड़ी थी, उसने बोला कि उन्हें एक बेटा नहीं, उन्हें एक लड़की चाहिए। तो होली मैन भी सरप्राइज हो गया था। पर चलो, उसने रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एक लड़की की दे दी। और संतोष, जो कि सिक्स चाइल्ड था उनकी फैमिली में, वो लड़की थी जो कि अपने फाइव सन्स के मतलब सिस्टर टू फाइव ब्रदर्स थी। वो एक स्मॉल विलेज में जोनियावास रिवरी डिस्ट्रिक्ट जो कि हरियाणा में है उसमें पैदा हुई थी। The girl was given the name Santosh, which means contentment, but Santosh was not always content with the place in a traditional way of life. उसका नाम तो संतोष था, पर जिसका मतलब contentment होता है, पर संतोष हमेशा अपनी जगह से content नहीं थी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ के। She began living her life on her own terms from the start, where other girls wore traditional Indian dresses. Santosh preferred short. तो उसने अपने हिसाब से लाइफ जीनी स्टार्ट कर दी थी, जहाँ पे दूसरी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, संतोष शॉर्ट्स पहनती थी। Looking back, he says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. तो फिर वो वेरी बिगनिंग से इतनी डिटरमाइंड थी कि अगर मैं करेक्ट पाथ और रैशनल पाथ चूज करती हूँ तो दूसरों को चेंज होना पड़ेगा, मेरे आसपास, मुझे नहीं। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children in the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in the line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make to do with the local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way. The right moment arrived, and the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in a village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. तो उसके जो पेरेंट्स थे वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे जो अपने बच्चों को दिल्ली के बेस्ट स्कूल में भी भेजने का दम रखते थे, जो कि क्वाइट क्लोज था। बट वही उनके प्रिवेलिंग कस्टम जो फैमिली में कथाएं चल रही है, उस चक्कर में संतोष को लोकल विलेज स्कूल में जाना पड़ा। उसने डिसाइड किया कि वो इस सिस्टम को फाइट करेगी, और उसने अपने क्वाइट उसका मूवमेंट सही टाइम अराइव हो गया। जब वो 16 की हुई, तब वो मोमेंट आया एट द एज ऑफ 16, जब सारी गर्ल्स की शादी हो जाती थी। वो भी अंडर वही प्रेशर थी अपने पेरेंट्स की कि उसकी भी शादी कर दी जाए। A marry a marriage as early, that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left the home and got herself enrolled in a school in Delhi where her parents refused to pay for her education. She politely informed about her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents agreed to pay for her education. तो एक मैरिज जल्दी से जल्दी उसकी लास्ट थिंग थी। तो उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन किया, डराया कि वो कभी शादी नहीं करेगी अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी। उसने अपने घर को छोड़ दिया और अपने आप को एक स्कूल में एनरोल कर लिया जो कि दिल्ली में। उसके पेरेंट्स ने उसके फीस देने के लिए मना कर दिया। उसने अपने पोलाइटली आराम से अपने प्लान्स बताए कि कैसे वो पैसे कमाएगी पार्ट टाइम जॉब करके और अपने स्कूल की फीस भरेगी। उसके पेरेंट्स फिर उसकी एजुकेशन के लिए एग्री करके कि ठीक है, तुम पढ़ लो।
Wishing away always to study a bit more, and with the father slowly getting used to urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hotel. Santosh remembers Kasturba Hostel faced the Aravali Hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to the climbing. तो उसे हर बार था कि मैं थोड़ा और पढ़ लूँ, थोड़ा और पढ़ लूँ और उसके फादर स्लोली उसके अर्ज को समझ गए और एजुकेशन लेने के। उसने हाई स्कूल पास कर लिया और वो जयपुर चली गई। वहां पे उसने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया और उसे कस्तूरबा हॉस्टल में रूम मिल गया। उसको अभी भी याद है कस्तूरबा होटल जो था अरावली हिल्स को मतलब उसके सामने था, मतलब उसको फेस करता था। उसने काफी विलेजेस को देखा कि जब वो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। तो उसने भी एक दिन डिसाइड किया कि वो भी ट्रुथ ढूंढेगी कि क्या होता है उधर। तो उसने कईयों को नहीं ढूंढा, कुछ को नहीं ढूंढा, पर सिर्फ फ्यू माउंटेनर्स। उसने पूछा कि क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं और उसके प्लीजेंट सरप्राइज में उन्होंने अफर्मेटिव और मोटिवेटेड तरीके से बोला कि ठीक है तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। Then there was no looking back for the determined young girl. She saved money and enrolled in the course at Uttarakshi's Nehru's Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was end to April, but it ended on the 19th May. And I was supposed to be in Uttarakshi on the 21st, so I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled in Uttarakshi. तो उसके कोई पीछे देखने का रास्ता नहीं था। वो एक डिटरमाइंड यंग गर्ल थी। उसने पैसे बचाए, अपने आप का नाम उत्तराखंड नेहरू इंस्टीट्यूट में एनरोल कराया जो कि माउंटेनियरिंग सिखाता था। उसके कॉलेज का सेमेस्टर जयपुर में अप्रैल के एंड में खत्म होना था, पर वो 19 मई को खत्म हुआ और उसको 21 मई को उत्तराखंड के इंस्टीट्यूट में होना था। तो वो घर नहीं गई, उल्टा वो स्ट्रेट ट्रेनिंग के लिए चली गई। उसने एक लेटर लिखा अपोलॉजी का अपने फादर को कि उसने बिना परमिशन के उनके अपने आप को एक उत्तराखंड के अंदर एनरोल करा लिया। Thereafter, Santosh went on an expedition every year. After climbing, her climbing skill matured rapidly. Also, they developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerely came in 1992. Just 4 years, she had shyly asked the Aravali mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with her found that a special place in the hearts of the fellow climbers. तो ऐसे मतलब संतोष प्रोग्रेस करती गई, हर साल एक्सपीडिशन के लिए जाती गई। उसके क्लाइंबिंग स्किल्स बहुत जल्दी मैच्योर हो गए और वो उसने एक रिमार्केबल रेजिस्टेंस मतलब कोल्ड और एल्टीट्यूड से जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके रेजिस्ट करना सीख लिया। उसके पास एक मतलब बहुत स्ट्रांग विल था, आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस और अमेजिंग मेंटल टफनेस थी। उसने अपने आप को बार बार प्रूव कर दिया और उस सिंसियरली वो 1992 में 4 साल के बाद जब उसने एक बार बहुत शर्माते हुए अरावली के माउंटेनियर से पूछा कि क्या वो ज्वाइन कर सकती है। बियरली 20 ईयर्स ऑफ एज उसने संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को स्केल कर लिया, मतलब वो उसके ऊपर चढ़ गई और वो यंगेस्ट वुमेन वर्ल्ड की बन गई उस फीट को अचीव करने की। अगर उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स और फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ सीनियर्स को इम्प्रेस कर देती थी, तो उसका कंसर्न दूसरों के लिए और भी बढ़ गया था और उसके उसके लिए सबके पास एक स्पेशल प्लेस थी उनके हार्ट के उस अपने हार्ट के अंदर उन सारे फेलो क्लाइंबर्स के लिए। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to climber who laying down on the South Pole. She was unfortunately unsuccessful in saving her. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who could have met with the same fate if she had not shared her oxygen with her. तो उसमें 1992 के एक मिशन में संतोष यादव ने स्पेशल केयर प्रोवाइड किए क्लाइंबर को जो कि साउथ पोल पे
उसकी डेथ हो गई थी, वो बचा नहीं पाई थी उसको, पर उसने अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह को बचा लिया, जो कि वो उसी तरह मर जाता अगर उसने अपना ऑक्सीजन उसकी तरह साथ शेयर ना किया होता। With 12 months, Santosh Yadav found herself with a member of Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them. Then she scaled the Mount Everest second time, setting a record as the only woman to scale the Everest twice, and securing her for herself and India a unique place in the annals of the mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her national top honors, the Padma Shri. तो उसमें 12 मंथ्स के बाद संतोष यादव अपने आप को इंडोनेपलिस वुमेन्स एक्सपेडिशन के मेंबर बना लेती है और वो उनको ज्वाइन कर लेती है। उसने तब वापस से एवरेस्ट को दूसरी बार स्केल किया और एक नया रिकॉर्ड फिर से बना दिया कि ओनली वुमेन टू स्केल द एवरेस्ट ट्वाइस, securing herself a unique place in the annals of mountaineering. इन द रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट्स फिर से इंडियन गवर्नमेंट उसे एक सबसे हाई अवार्ड पद्मश्री से उसको सम्मानित करती है। Describing her feelings when she was literally on the top of the world, Santosh Yadav said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian." Also, a foreign environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kgs of गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। तो उसकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही जब वो टॉप ऑन द वर्ल्ड की। संतोष सेड कि उसको कुछ टाइम लगा ये सच्ची में ऐसे सोचने के लिए कि सच्ची वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे है और उसका इंडियन ट्राई कलर फ्लैग, हमारा इंडियन ट्राई कलर फ्लैग वर्ल्ड के टॉप पे मतलब लहरा रहा था। ये फीलिंग उसके लिए इनडिस्क्राइबेबल थी, मतलब वो बोल नहीं पा रही थी कि उसका इंडियन फ्लैग टॉप पे था। वो एक ट्रूली स्पिरिचुअल मूवमेंट था और वो प्राउड एज एन इंडियन थी, फील कर रही थी प्राउड। और इन्वायरमेंटलिस्ट होते हुए उसने 500 किलो का पूरा कचरा हिमालय से नीचे लाई। तो ये था हमारा चैप्टर 8, रीच फॉर द टॉप। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।